गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस जिन्हें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो हैं, जैसे आपकी पोटेशियम आयोडाइड जब भी रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ में, तो बोथ आर यू आर सीइंग कि दोनों ही जो हैं आपके कलरलेस लिक्विड्स हैं। स्टिल व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म ए येलो कलर लिक्विड। सी हेयर, it is lead nitrate which is colorless again, and potassium iodide, it is also colorless liquid, but when they are meeting they are forming a yellow precipitate, ठीक है। and this yellow precipitate indicates that the reaction has been taken place. Such reactions, such chemical changes are known as chemical reactions. This is another chemical reaction in which we have a magnesium ribbon. Here this is a magnesium ribbon holded in a tong. This is a tong, right? And now it is getting burned, right, in a air. Now talking about the chemical reaction, so what are the chemical reactions? A chemical reaction can be referred as a process in which reactants get converted into the product, which may be under an influence of a catalyst. Now, what is this catalyst? See, as we all know that the reaction takes place, whenever the reaction takes place, two words are common here to mention. One, that is reactant. If we talk about this reaction, see, this is a reaction in which we find the component 1 and the component 2 here, right? These two components are here. When these two components 1 and 2 are getting mixed, the third component is getting formed in the vessel, right? So these 1 and 2 components collectively are called the reactants, whereas the product getting formed, that is component 3, it is known as the product. Okay, so in case there is any fourth component mixed here, which neither in the form of reactant nor in the form of the product, right? This fourth product which do not take part in the reaction, but it increases the rate of reaction, means reaction जो 2 मिनट में complete हो रही थी वो अभी 1 मिनट में complete हो जाए in the presence of this fourth component, तो ऐसा जो component है, such component is known as what? Such component is known as catalyst. Okay, तो catalyst आप किसे कहेंगे? Catalyst can be defined as the you can say chemicals which do not take part in the reaction but affects the rate of reaction, right? So the reactants are written in the left hand side. See, रिएक्टेंट्स को हम जब भी इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स रहेंगे और राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम और इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहें तो व्हाट कैन डू? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि कैसे हम जान सकते हैं दैट रिएक्शन हैज़ बीन डन, ठीक है। मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लेट्स सी अबाउट दिस। तो सबसे पहले, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन कलर, इफ़ देयर इज़ एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड देयर इज़ ए चेंज इन टेम्परेचर, देन वी विल नो कि यहाँ पे रिएक्शन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक द एक्सचेंज एग्जाम्पल ऑफ द चेंज इन कलर, देन अगेन वी कैन रिफर टू द रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि जब भी lead nitrate was reacted with the potassium iodide, both were colorless but the yellow color was getting formed. फर्दर मोर आप घरों में भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हम हल्दी जो कि येलो कलर की है उसको वाइट कलर के चूने में मिक्स करते हैं तो एक रेड कलर निकल के आता है। दिस इज़ केमिकल रिएक्शन, राइट। इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जो घरों में हमारी बेकिंग सोडा अवेलेबल रहता है, उस सोडियम बाइकार्बोनेट में थोड़ा सा एसिड दैट इज़ विनेगर को डालते हैं तो व्हाट वी ऑब्टेन दैट सर्टेन गैस इज गेटिंग इवॉल्व्ड हेयर। ओके, to be very common we can take the example of eno as well.
अगर आप इनो को लो और उसमें पानी डालो तो what you observe, there is a evolution of gas. It means certain chemical reactions has been taken place here. Furthermore, change in temperature. If you have noticed ever कि आप अगर कच्चा चूना, that is quick lime, chemical formula is, what is chemical formula? We have discussed in last class, that is calcium oxide. ठीक है, calcium oxide को जब हम पानी में डालेंगे तो what will happen? What will happen here? See, calcium oxide. 1 minute. Yes, CaO will react with H2O. Then what will be forming here? CaOH का whole twice. Okay, साथ में you find that a huge amount of energy, this delta is the symbol of heat, right? A huge amount of energy is released and the temperature of the vessel gets higher. Okay, such reactions in which such phenomena in which there is a chemical change observed are known as what? Chemical reactions. Okay, now if we talk about the law of conservation of mass, then we say that the atom can neither be created nor be destroyed. It means the number of atoms present in the reactants should be equal to the number of atoms present in the products. Okay, such reactions in which the number of atoms present in reactants are equal to that of the atoms present in the product are known as balanced reactions. Okay, so it is clear why it is important to balance the reaction, because according to the conservation of mass, we have seen in class 9 that mass can neither be created nor be destroyed. Okay, so moving to the next slide, what we observe is how can we write a chemical reaction. See, here we have mentioned the reaction between magnesium ribbon, right? It is magnesium, right? And magnesium is getting burnt. It means whenever anything burnt, you find burning is in the presence of oxygen. ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा, हमें फॉर्मूला लिखना आता है, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2, व्हाट विल दी फॉर्म, MgO. हमें क्या मिलेगा, MgO. ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन है हमारी, इसको हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम, देखिए ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, सॉरी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, 1 मिनट. यस, हेयर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया MgO. ठीक है, यू कैन विजुअलाइज दिस रिएक्शन in this figure. Here you can consider the reaction between hydrogen atom and nitrogen atom forming NH3. ठीक है, तो this is 6 atom of hydrogen. Here you find 2 atom of nitrogen and 2 atom of ammonia are formed here. Such reactions are known as balanced reaction. Okay, to make these reactions more informative, we have certain symbols we will discuss later. Let's see first what is balanced and imbalanced reaction. See, look here, as we have discussed that mass can neither be created nor be destroyed, so the number of hydrogen and number of chlorine present in the site of RHS are not equal to that of the present in the LHS, whereas according to the law of mass action these should be equal. So to equalize these, we will multiply this HCl with 2. Then what we see, the reaction is balanced here. Okay, this is balancing of reaction. Now let's move to the next
topic is balancing of chemical reaction. How can we balance these chemical reactions? We can balance the chemical reactions by two methods. Okay, दो मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो. क्या क्या मेथड है? टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट, this is box method. Two methods are here. First, heat and trial method. ठीक है. And second, box method या table method is it is also known as. ठीक है, box method. Now here first we will see about the box method. So what it is saying, okay, first of all, to balance a chemical equation, first draw a box around each formula. हर फॉर्मूले के पास एक एक बॉक्स बना लीजिए. कोई भी इन बॉक्स के इनसाइड का मटेरियल विल नॉट बी चेंजिंग. ठीक है. इसके बाद सारे लिस्ट कर लेंगे हम एटम्स को. जैसे MgO का केस हमने लिया था. ठीक है, Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO. ठीक है. तो एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से. इधर रिएक्टेंट लिख लेंगे, इधर प्रोडक्ट लिख लेंगे और इधर एलिमेंट्स लिख लेंगे. इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग. ठीक है, ये देखिए इन दिस वे. ठीक है. यहाँ पे Mg एक हो गया, Mg एक हो गया O. ठीक है. रिएक्टेंट में Mg एक है, प्रोडक्ट में Mg कितना है? अगेन एक है. ठीक है. यहाँ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 2. यहाँ ऑक्सीजन एक है. ठीक है. टू बैलेंस दिस, सी फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज्ड. आप फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते. कंप्लीट फॉर्मूला का मल्टीप्लाई करके वी विल ट्राई टू बैलेंस इट. ओके. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई, इसको ओ को बैलेंस करना चाहें तो व्हाट वी नीड, हमें यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. अगर हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल राइट हेयर 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे, और जब यहाँ पे 2 लिखेंगे इट मीन्स ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया. नाउ टू बैलेंस दिस मैग्नीशियम अगेन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैग्नीशियम विद 2. ठीक है. So the reaction is completed. 2Mg plus O2 give rise to 2MgO. ठीक है. तो what reaction is here? Two Mg plus O2 give rise to 2MgO. Okay. This is the complete balanced reaction. See one more example here given. ठीक है, कि how you are balancing hydrogen reacting with oxygen to give water. So here we have 2 molecule of hydrogen, 1 molecule of oxygen giving 2 molecule of hydrogen. If we equalize, equation means there should be equal material both side. ठीक है. तो 4 hydrogen 2 oxygen, here also 4 hydrogen and 2 oxygen. Okay. To make the reaction more informative, what we can do is कि सी, अगर यहाँ पे हमारा कोई भी रिएक्टेंट है एंड इफ़ यू वांट टू मेंशन दैट इट इज़ इन द गैसेस स्टेट. ठीक है. तो गैसेस स्टेट के लिए हम यहाँ पे इसके बॉटम में इस तरह से छोटा सा G लिख देंगे. ठीक है. इफ़ यू वांट टू मेंशन कि ये लिक्विड स्टेट में है, से H2O, तो हम यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में L लिख देंगे. ठीक है. इस तरह से L लिख देंगे. अभी यहाँ पे अगर aqua solution व्हाट डज इट मीन? aqua solution का मतलब है कि वाटर में घुला हुआ. ठीक है. और सॉलिड लिखेंगे सॉलिड के लिए. ओके. दीज आर सम इंफॉर्मेशंस टू मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव. एक टेबल है जिसे आप बना सकते हैं. ठीक है. सी, इस तरह से आप अलग से इसे बना सकते हैं. जस्ट वेट. इस तरह से बना लीजिए. सिंबल L किसके लिए? लिक्विड के लिए. ठीक है. देन सिंबल S
सॉलिड के लिए, ठीक है। सिंबल G गैस के लिए, ठीक है। AQ एक्वस सॉल्यूशन के लिए, नोट कर लीजिएगा इतना। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद AL मतलब एल्कली सॉल्यूशन। देखिए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे आपने नमक लिया, नमक प्योर है तो ये सॉलिड है, बट अब आप उसे पानी में घोल दीजिए, अब ये क्या है, नमक एक्वस हो गया, ठीक है। इसी तरह एल्कलाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया कि नमक लीजिए और नमक को एल्कली, दैट इज NaOH। व्हाट इज़ एल्कली, एल्कली क्या होता है, ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे व्हाट इज़ एल्कली। एल्कली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी याद कर लीजिए, NaOH है, KOH है, ये एल्कली है, ठीक है। वो ऐसे बेस विच कैन लिबरेट OH, इनको एल्कली बोलते हैं। वो सब डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे याद रख लीजिएगा अगर कोई सॉलिड आपका एल्कली में घुला हुआ है, लाइक NaOH में घुला हुआ है, तो दैट विल बी नोन एज AK, इस तरह से लिख देंगे हम। फिर ALK होता है, सॉरी नॉट AK, इट इज ALK, ओके, इट इज ALK। नाउ ALC, इट इज फॉर अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक मिक्सचर के लिए, मीन्स अल्कोहल में घुला हो, ठीक है, अक्वस, अल्कोहलिक और अल्कलाइन। फिर अगर ऐसे एरो लगा दिया है हमने, किसी चीज़ के डाउन एरो लगा दिया है, तो इट इज़ सिंबल ऑफ PPT, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन हुआ है उस कंपाउंड का, ठीक है। जैसे वहाँ पे लेड आयोडाइड येलो कलर का था, प्रेसिपिटेट हो गया था। अगर हम इस तरह का एरो लगा दें, इसका मतलब है गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। ये चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। देन आफ्टर अगर हीट का सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स इसका ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब है हीट, ठीक है। इस तरह का ऐसे करके बना हुआ है कोई सिंबल, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। एंड इसके बाद अगर H न्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इसका मतलब हो गया लाइट की प्रेजेंस में ये हुआ है, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट symbols which can make the reaction more informative, okay। now see टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वी कैन सी केमिकल रिएक्शंस हमारी कितने टाइप की हैं। यहाँ पे एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। फिलहाल दिस इज़ नॉट द रियल बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। देखिए, जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मैनी क्लासेस कि whenever there is a talks about the classification, then we always कंसीडर कि क्लासिफिकेशन जो है वो आपका किस बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिस लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट, ओके। सी क्या होगा, तो इसमें आप देखिए कितने टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स। रिडॉक्स रिएक्शन को अभी हम यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे, उसके बाद या फिर यहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए दूसरा बेसिस, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। आई डोंट हैव स्लाइड फॉर दैट, सो आई रिकमेंड कि आप नोट कर लीजिए उसको। सेकेंड आप नोट कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ
basis of ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम इसे चेंज कर सकते हैं 3 टाइप्स में। ठीक है, कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। तो वो 3 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? लेट्स सी। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक और बेसिस रहता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर रिएक्शन के समय कैसे चेंज हुआ है उसके बेसिस पे आपकी अगेन 2 टाइप की रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट नोट कर लीजिएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, थर्मिक। सेकेंड एंडोथर्मिक। ठीक है, ये 2 टाइप की रिएक्शन हो गई। तो इस तरह से कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चेंज इन एटॉमिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, एटॉमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे हम पहला क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।